اوپر جو ہوتے ہیں نا 40 سال سے اوپر 80-90% لیکسس کی پیشنٹ ہے. آپ سمٹم لینا زیادہ لمبے چوڑے. بیسکلی کاز کیا ہے؟ مینوپاز کاز ہے, پری مینوپاز کاز ہے. تو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اس نے اس سے ریپلیکیشن کرنی تھی, اس نے اس لیے جنریشن پیدا کرنی تھی. اور جب جنریشن کا عمل رکتا ہے, جب جنریشن کا عمل رکتا ہے تو کیا کرتا ہے خدا؟ انسان کو مارتا ہے. مارتا کیسے ہے کہ اس کا جو ہارمونل سسٹم ہے اس کو سیز کرنا شروع کرتا ہے, اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے. یہ ڈیتھ کرواتا ہے جب آپ کا جنریٹر سسٹم ورک نہیں کرتا. اور دنیا میں اس وقت بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آپ نے اگر لمبی عمر پانی ہے نا تو آپ نے جنریٹر سسٹم کو ایکٹیو رکھیں. وہ سانپ کا زہر جو ہے وہ زندگی جو ختم ہو رہی ہوتی ہے, جو عورت باندھ ہو رہی ہوتی ہے, جو عورت جنریشن پیدا کرنے کی صلاحیت کھو رہی ہوتی ہے, وہ اس کو زندگی دیتا ہے وہ سانپ. اور لاکھوں کروڑوں عورتیں جو سانپ اگر کسی کو ڈستا ہے تو اس کو مارتا ہے. لاکھوں سینکڑوں ہزاروں کروڑوں عورتوں کو لیکسس نے اس بیماری سے نجات دی اور اس کی عمر بڑھا دی, اس نے اس کی صلاحیت باڈی کی ایفیکیسی بڑھا دی ایک سانپ کی زہر سے. اس لیے میں اکثر ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں, سلیوٹ پیش کرتا ہوں ہیرنگ کو, جس نے یہ سانپ جو ہے وہ پروو کیا. ایک سانپ ایک عورت کی اگر میں بات کرتا ہوں, سینکڑوں قسم کی ملیگنسی لیکسس ٹھیک کرتی ہے, وہی جو بندہ مارتی ہے. اور یہ دنیا کے کسی سائنس میں کہ یہ ایج نہیں ہے, کسی سائنس کے پاس یہ ایج نہیں ہے کہ وہ پوائزن سے لوگوں کا علاج کرے. یہ تو ہے کیا آپ کے پاس؟ کیا اس سے زیادہ ہمت آپ کو کیا دے سکتا تھا؟ اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ہماری بیوقوفیاں, ہماری ناکامیاں, ہماری نادانیاں اور ہماری غلطیاں اس سسٹم کو فروغ ہونے میں, اس سسٹم کو پڑھنے میں روکتی ہیں. اور میں آپ کو میں پچھلے دنوں میں نے ڈفرینٹ ٹاپک ٹچ کیے. میں نے وہ ٹاپک میں ٹچ کرتا ہوں جو ایلوپیتھک میں اس وقت دنیا میں لاعلاج سمجھے جاتے ہیں. مثلا کینسر کا ٹاپک ہے میری, بلکہ کل ایک نشست ہے وہاں اسلامیہ یونیورسٹی میں, تو میں وہ چیلنجز جو ہیں دنیا کی سائنسز کو وہ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ کیا کیا چیلنجز ہیں دنیا کو, اور ہم وہ ڈسکس کریں گے. میں کل بھی میری 1 گھنٹہ میرا ایک دوست ہے اسکن اسپیشلسٹ سے بات ہوئی ہے آٹومیون ڈیزیز پہ کہ اسکن کے اندر کیا کیا ایسی ڈیزیز ہیں جو آٹومیون. وہ کہتا نہیں ہے ہمارے پاس علاج کوئی بھی اس کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف امونو سپریشن دیتے ہیں, ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں, لیکن وہ زندگی انسان کی نہیں بچا سکتا, الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو ہومیوپیتھی یہاں بیٹھے نا, ڈاکٹر سلمان سے پوچھے کہ بالچار کے کتنے کیس انہوں نے ٹھیک کیے, پوچھے ان سے, سینکڑوں آپ لوگوں نے بھی ٹھیک کیے ہوں گے. تو آپ کو پتا ہے بالچار کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایلوپیشیا ریکٹا کیا ہے؟ ایلوپیشیا ریکٹا جو ہے وہ آٹومیون ڈیزیز ہے, اور وہ کہتے ہیں آٹومیون کا ہمارے پاس علاج ہی کوئی نہیں. تو آپ نے تو جہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں نے بالچار ٹھیک کیا ہوگا, ایلوپیشیا ریکٹا یہاں کئی لوگوں نے ٹھیک کیا ہوگا, لیکن ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے. اگر دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ آٹومیون ڈیزیز کا علاج جانتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ سڑکوں پہ آپ کو ٹریبیوٹ پیش کریں یا نہ کریں. ایک ایلوپیشیا ریکٹا, سینکڑوں 85 سے زیادہ آٹومیون ڈیزیز ہیں جن کو ہومیوپیتھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں رکھتی. آپ خود سوچیں نا, آپ نے کئی جنگل کی انرجی کے لوگ ٹھیک کیے ہوں گے, لیکن آپ کو نہیں پتا کیا. اب ہمارے پاس فالج آتا ہے, اب فالج آتا ہے یار, فالج کسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے ایمرجنسی میں ڈسکس کیا, سٹروک کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سٹروک کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ برین کے اندر کلوٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہیمریج کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا کوئی ضروری, ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹروک یہ برین ہیمریج ہے یا یہ کلوٹ ہے, اس کی وجہ سے پیرالائسس ہوا. اب پیرالائسس آٹومیون ڈیزیز میں بھی ہے. آپ ایم ایس کو ڈفرینشیٹ
पैरालिसिस से, स्ट्रोक से डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें भी पैरालिसिस है। जीबी सिंड्रोम में भी पैरालिसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस में भी फॉलेज है। तो क्या अगर हम ये जितने में डिजीज के नाम आपको बता दूं, इसका सब इलाज आप करते होंगे, मैं भी करता हूं, आप भी करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसलिए मुखातब होता हूं कि उनको पता हो कि इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल है, और ये सिस्टम अनाड़ियों, जैनों और निकम्मे लोगों के हथे चढ़ा हुआ था। हम इसको निकाल के वापस ट्रैक पे लाए जो हनीमन का सिस्टम था। और मेरी जिंदगी रही कि दोबारा हॉस्पिटल खुलेंगे, दोबारा इमरजेंसी डील होगी, दोबारा सब कुछ होगा, और ये एलोपैथिक डॉक्टर मान के आपसे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, इसलिए रहे हैं कि रिजल्ट आ रहे हैं। उनको अब समझ लग रही है कि पॉइजन जो है वो पॉइजन इंसान की जिंदगी को ठीक करने की सलाहियत है। दुनिया में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइट इंसानों की जानें ले रहा है, और आपके पास एक रिसोर्स का ऐसा एज है कि वो जानें बचा रहा है। 5, 6, 7 वैक्सीन दुनिया में तैयार हुई है ना, MMR बनी है, DDT बनी है, पोलियो की वैक्सीन बनी है, और आपके पास तो हजारों सैकड़ों वैक्सीन है रिसोर्स पर पड़े हुए। अगर वो लोग समझे, वो लोग जाने, और आप उसको एक्सपेक्ट। अच्छा, मजे की है, मैं आपको बात ये बताऊं कि ये लोग अब पढ़ने शुरू हो गए, ये लोग पढ़ने समझने शुरू हो गए। वो इसलिए पढ़ ले कि हम वोकल हुए। यहां प्रॉब्लम एक और बड़ा है, हमारे साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है। जिस बंदे की प्रैक्टिस है ना, वो वोकल ही नहीं है, वो एक्सप्रेसिव ही नहीं है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो कमीना है, वो कम ज़ब्त है, वो किसी को सिखाना ही नहीं चाहता। ये तुम्हारी निराश है, ये खुदा का दिया हुआ इल्म है, ये खुदा का दिया हुआ इल्म है। ये अगर अली के सीने में है तो लोगों का है, क्योंकि खुदा का दिया हुआ है। तुम खुदा के दिए इल्म को छुपा कर इस दुनिया में जाना चाहते हो, और खुदा को है मेरा हाथ होगा और उसका गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा और उसका गिरबान होगा। हमने दुनिया के हर उस इलाज को टच किया, हमने दुनिया के हर उस लार्ज मर्ज को टच किया, हमने कैंसर को टच किया, हमने इन्फेक्शियस डिजीज को टच किया, हमने डिजनरेशन को टच किया, हमने जेनेटिक्स को टच किया, हमने ड्रग्स को टच किया, हमने ड्रग दुनिया में। आपके पास तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक टॉपिक पे छिड़ पड़ूं तो मैं कई घंटे बोलूं, मैं सिर्फ ड्रग्स पे बोलूं तो मैं कई घंटे बोलूं। आपके पास तो ड्रग्स का इतना बड़ा टच है, दुनिया के पास तो एंटीडोटल ही कोई नहीं है। एक दवाई खा के लोग उसी दवाई को खा के मर करते। मेरे दोस्त है वो कहते हैं हमारे पास तो एंटीडोट ही कोई नहीं है, हमारे पास तो दवाइयों को जाहिर करने का एंटीडोट ही नहीं है। आपके पास तो बेतहाशा साइंस पड़ी है भाई, एंटीडोट। और मैं आपको बताऊं कि अब तो हमने जो दवाई एलोपैथिक डॉक्टर खा गया अंग्रेजी दवा की खा, हम उसी दवाई की पोटेंसी देके उसको एंटीडोट करते हैं। भाई आपके पास क्या क्या सलाहियतें हैं यार, इस सिस्टम की क्या क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, क्या क्या पोटेंशियल है इसके अंदर। जहरों से दवाइयां बनाना आप जानते हैं, एंटीडोटल्स आपके पास हैं, दवाइयों की खराबियों को दूर करना आप जानते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस को ठीक करना आपके पास सलाहियत है, जेनेटिक डिसऑर्डर की सलीक करने की सलाहियत आपके पास है। ये जो जिसका उस्मान जिक्र करता है मासूम बच्चों का, कहीं भाई गूंगा ठीक हो गया, बहरा ठीक हो गया। भाई मेरा एक दोस्त है ब्रिगेडियर चाइल्ड स्पेशल है ब्रिगेडियर, मुझे कहता है मेरे कैंप में बैठा, मुझे कहता है एक बच्चा ठीक हो जाए ना हमारे सिस्टम में, पूरी दुनिया के मीडिया पे वो चलेगा। एक बच्चा, वो यार यहां तो हजारों ठीक हो रहे हैं,
کہتے ہیں یہ جو جینیٹک ہے، آپ کو پتا جینیٹک ہوا کہتے ہیں یہ جو آٹوسومل ریسیسو جینز ہیں، جو فیملی میرجز ہیں، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آٹوسومل ریسیسو جین ہے، ایک قسم کے ایک کے اندر ہے تو دوسرے کے اندر تو آدھے برابر بچہ پیدا ہی ہوگا، یا ڈومینیٹڈ جین ہے تو بچہ برابر پیدا ہی ہوگا۔ تو یار آسمان سے پوچھے نا، میرے پاس اس وقت 16,000 بچہ رجسٹر ہے، آسمان سے پوچھے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ وہ یہ جینیٹک ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ جینیٹک ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ جین کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ جین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہی آپ کے پاس ایکس رے پڑی ہے، آپ کے پاس ٹیوبر پڑی ہے، وہ اس نے کہا کہ 4 بیسک پرنسپل ہے اور میازمیٹک تھیوری۔ What is the miasmatic theory? Miasmatic theory, the complication of bacteria, the complication of virus, the complication of one fungus, and the complication of virus. This is the miasmatic theory. دو میازم وہ بیچارہ ذکر کر کے گیا، دو میازم، آپ اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے کہ سمجھنا چاہتے ہیں اس کی اگر آپ پیتھوفیزیولوجی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کی پیتھوفیزیولوجی ہے کیا ہے گنوریا کی۔ اور بھائی ہزاروں میازم پڑے ہیں اس میں، آپ کا کلیمیڈیا میازم ہے، آپ کا ٹائیفائڈ میازم ہے، آپ کا ملیریا میازم ہے، بے شمار آپ کتنے میازم کا ذکر کریں گے، میں کتنے بیکٹیریا کا ذکر، سب کی کمپلیکیشن ہے، سب کی کمپلیکیشن ہے۔ آپ ایک گردے کی پتھری کو پڑھنا شروع کریں نا، تو میں پچھلے لیکچر میں آگے آپ کو بتا گیا کہتا ایک گردے کی پتھری بربرس اور لائکو تک کا ہے، ایک گردے کی پتھری لائکو اور بربس اور ساس سے پیدا کے محدود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بیکٹیریا میں بھی گردے کی پتھری بنتی ہے، وہ کہتا ہے بیکٹیریا بھی گردے، وہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کی خرابی سے بھی گردے۔ میں پچھلے دنوں میں آٹومیون ڈیزیز پڑھا رہا ہوں، میں السریٹیو کولائٹس پڑھا رہا ہوں، وہ کہتا ہے السریٹیو کولائٹس کا سائیڈ افیکٹ ہے گردے میں پتھری بنتی ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم پڑھے تو ہمیں پتا چلے نا، ہم سمجھے تو ہمیں پتا چلے نا، ہم سمجھے تو ہمیں پتا چلے نا۔ ایک پتھری کو ہی لے کے جب بیٹھ جاؤ یار، ایک ڈیزیز کو پڑھو، ایک ڈیزیز کو لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کا کلینک، میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ چلے۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اگر میرے کلینک میں رات 4 بجے تک دستک ہوتی ہے، ڈاکٹر سلمان کے کلینک میں 400 مریض اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتے بھائی؟ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے سمپٹمولوجی کے علاج کرنا ہے، اور بس آپ کسی کے پاس پوچھنے بھی چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا سمپٹم کے مطابق دوائی دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا سمپٹم کے مطابق دوائی دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتا یہ کسی کا پازیٹیو فیکٹر، اس کا یہ پازیٹیو فیکٹر۔ سنیک پوائزن میں میں بات کر رہا تھا، آپ پروٹیلس کو دیکھیں، آپ لاجا کو دیکھیں، اب وائبرا، میں ملٹیپل سکلوسس پڑھا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اسینڈنگ پیرالائسس جو ہے وائبرا کے اندر پایا جاتا ہے، اسینڈنگ پوائزن پیرالائسس کونیم کے اندر پایا جاتا ہے، کونیم بھی پوائزن ہے، وائبرا بھی پوائزن ہے ملٹیپل سکلوسس ہے کیا؟ جی بی سنڈروم، جی بی سنڈروم کا پیرالائسس نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ اور یار خدا نے کتنی آلٹرنیٹیو چیزیں پیدا کی ہیں، کتنی آلٹرنیٹیو دوائیاں آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس نے پلانٹ گروپ میں بھی دوائی رکھی ہے، اس نے آپ کی منرل گروپ میں بھی دوائی رکھی ہے، اس نے آپ کی پوائزن گروپ میں بھی دوائی رکھی ہے، اس نے آپ کی ریسورٹ میں بھی دوائی رکھی ہے۔ کہاں آپ کو وہ سہارے دے رہا ہے، لیکن وہ سہارے کب آپ کو ملیں گے؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے، ان سہاروں کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سہارے ملیں گے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں جو کسی سسٹم کو بھی آپ چھیڑ کسی، اور پھر ایک بڑا
आपके पास कम्प्लीमेंट्री, फॉलो वेल, रिलेशनशिप दवाइयों का एक समुद्र पड़ा है। रिलेशनशिप में दवाइयों का एक समुद्र पड़ा है। एक्वानाइट फेल होती है तो सल्फर दें, सल्फर फेल होती है तो ट्यूबर दें, ट्यूबर फेल होती है तो सिब्रेनियम दें, सिब्रेनियम फेल होती है तो कार्सिनोसम दें, कार्सिनोसम फेल होती है तो एक्सरे दें, एक्सरे फेल होती है तो सोल दें। और वो कहता है कि जब आपके पास कोई हाल ना हो तो उसकी आदत बदले। कहाँ सिस्टम आपको गुंजाइश देता है? क्या हम उसको समझ रहे हैं? और आज से अगर आप ये तय कर लें कि मैंने रोज एक दवाई पढ़नी है, मैंने रोज एक डिजीज पढ़नी है, तो सारे डॉक्टर एलिमन होंगे, सारे डॉक्टर उस्मान होंगे। तो भाई हमारे सर पे तो कोई वो नहीं लगा हुआ, कुछ सीन तो नहीं लगे हुए ना, लेकिन इसके पीछे जदोजहद, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, एक अनथक मेहनत है। जो जर्नैल जंग जीतते हैं ना, वो रात के घोड़े की पीठ पे सोते हैं, वो रात को घोड़े की पीठ पे सोते हैं, तब वो जर्नैल जंग जीतता है। जो खरगोश की तरह खामोश में उस तरह सोता है, इस तरह जंगे नहीं जी जाती। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में मैं 84 में मैंने एडमिशन लिया था, और मेरी जिंदगी का एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं होम्योपैथी बड़े रिलैक्स हो गया। एक दिन ऐसा नहीं है, चाहे वो ईद है, चाहे वो शबरात है, चाहे वो मातम है, चाहे वो मैं थका हूं, चाहे जगराता है, कुछ भी है, बुखार है, मेरे बात को पढ़ के सुना है भाई। आज अगर आप तैयार करने, हमने रोज एक दवाई को पढ़ना है, रोज मैंने एक डिजीज को पढ़ना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कल वो दवाई वाला आ जाएगा, कल वो डिजीज वाला आ जाएगा, आप सक्सेस होंगे। उस मासा में एक टॉपिक पे तो लेक्चर दूं तो कई घंटे में मैं तो बाल की खाद उतार के रख देता हूं, इसलिए कि मैं रोज फेस करता हूं, मैं रोज समझता हूं, मैं शर्मिंदगी से क्लिनिक से उठ के नहीं जाना चाहता। और याद रखें, जो शख्स कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि ये वही हो सकता है। जो शख्स कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है ना, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। आप कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें। जो पक्का चोर होता है ना, पक्का चोर, वो आपके सामने चीज उठाएगा, आप उसको नहीं पकड़ सकते, इसलिए तो वो किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं है। इसलिए मैं तो किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं हूं। हम फाइट करते हैं भाई। मैं जब छोटा था ना, तो तैमूर की चोटी मैंने पढ़ी थी, वो चढ़ता है उससे सीखा, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर। मरीज आपको सिखाता है, जहां फेलियर होगा वहां ही सक्सेस होगी। स्ट्रगल मरीज आपको सिखाता। मैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। ये तो बरसों की मेहनत है, बरसों का। मैं तो कई रातें बोल सकता हूं। जो बंदा 600-700 घंटे मुसलसल बोला, उसको जितना मर्जी है मुझे बुला, जितना मर्जी। लेकिन आज की नशिस्त का अगर फायदा ये हो कि ये जो आए हुए हैं, ये साल बाद 365 दिन में 365 दवाइयां पढ़ लें, इतने डिजीज पढ़ लें, तो जब मैं अगली नशिस्त में आऊं तो 100, 200, 400 सारे मरीज देखते हो, देखते हो। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हनीमन बड़ा दलेर आदमी था। वो सिर्फ साइंटिफिक इंसान नहीं था, वो कोई सिर्फ तर्जमे करने वाला इंसान नहीं था, वो एक अच्छा डॉक्टर के अलावा वो बहुत कुछ था। और सबसे बड़ा बात यह है कि वो दलेर आदमी था, वो बहादुर आदमी था। वो उस वक्त साम्राज्य से टकराया, उस वक्त के सिस्टम से टकराया, और उसने आपको एक बहुत बड़ा सिस्टम। आज तो मैं उस दिन 2 लाख से ज्यादा तो पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर है। एक केला बंदा पूरी दुनिया के माफिया से वो टकराया।
اور آپ کو ایک خوبصورت سسٹم دے کے گیا جس کو ہم سنبھال نہیں سکے. وہ دلیر بندہ تھا, وہ بزدل بندہ نہیں تھا. اور میں پیغام دیتا ہوں اس فورم سے, ایک تو میں پیغام دیتا ہوں لوگوں کو جو اس سسٹم سے کھاتے ہیں, جو اس سسٹم سے جیتے ہیں, جن کے گھر کے چولہے اس سسٹم سے جلتے ہیں, وہ اگر اس سسٹم کے خلاف بولیں گے ان کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم دماغ بھی رکھتے ہیں, ہم زبان بھی رکھتے ہیں اور ہم ہاتھ بھی رکھتے ہیں. میں ان کی زبان ان کے الگ سے کھینچ کے دوں گا. ہم غنیمت کے جان ماننے والے ہیں, ہم غنیمت کے چاہنے والے ہیں, اور سب سے بڑھ اس خدا کی مخلوق کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ سسٹم اس خدا کی ایک پوٹینسی, غنیمت کا ایک اصول جس کو پوٹینٹائزس کا اصول کہتے ہیں نا, ڈیلیوشن کا اصول ہے. میں ایک اصول اگر میں ہر فرد کو بتا دوں اس دنیا کے کہ یہ دوائی بنتی کیسے ہے, یہ تو دوائی نہیں ختم ہوتی, اس کے چارجز کتنے ہوتے ہیں, خدا کی قسم سے وہ جس طرح لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اس کو سلام کرنے لوگ باہر نکلتے ہیں. اور ہم اتنے ظالم ہیں, اس ملک کی, اس دنیا کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں اتنی ظالم ہیں کہ 10% بھی اس پہ نہیں خرچ کرتے, زکات کا پیسہ بھی سسٹم میں نہیں لگاتے. یار پانی بیچتے ہیں لوگ, ایک شیشی ایک زندگی میں کوئی خرید لیتا نا, ساری زندگی کو پتا نا, آپ کو سب کو پتا ہے نا. تو پھر انسانیت کے دشمن کون ہیں؟ ہم میں کے ڈاکو ہیں. کیا ہمارے چہرے ڈاکوؤں کی صورت میں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جو دنیا میں اربوں کروڑ روپے جہاں سے کماتی ہے اور 10% بھی اس کی سسٹم کی فلاح کے لیے خرچ کر دے تو یہ سسٹم کہاں پہنچے؟ ہم مار کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ آپ کا کوئی بل نہیں پاس ہوتا, آپ کی کوئی چیز آپ کو نہیں ہوتی, آپ کو وہ اسٹیٹسکوپ نہیں رکھنے دیتے, آپ کو الٹراساؤنڈ نہیں رکھنے دیتے, آپ کو ایکس رے مشینیں نہیں رکھنے دیتے. کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ پورا ڈرگ مافیا, پوری منسٹری کی. میں صرف کلینکل پریکٹیشنر نہیں ہوں, میں یہ سب جانتا ہوں, میں یہ سب سمجھتا ہوں, لیکن یہ آواز 2 لاکھ کی آواز تب دنیا میں گونجے گی جب آپ رزلٹ پروڈیوس کریں گے, جب آپ کے کلینک چلیں گے, جب آپ کے مریض بولیں گے, تو پھر یہ آواز اٹھے گی. اور ہم اپنا زندگی کا سارا سرمایہ دیکھیں نا, میرا کیپٹل کیا ہے؟ میری پریکٹس ہے. ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کا سارا اثاثہ ہوتا ہے. میں تو سارا کیپٹل اپنا لٹا دیا, میں نے جو سمجھا ہے, جو سیکھا ہے, جو پتا چلا ہے وہ آپ کو بتا دیا. مجھے مائک کا لال ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا آپ کا 10% شیئر تو لٹا کے دکھائے, ہے کوئی مائک کا لال؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہماری جدوجہد ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پینیٹریشن کرنی ہے, ہم نے 4000 میڈیکل ٹیکنالوجی کے ورڈ سیکھنے ہیں, ہم نے بیماریاں پڑھنی ہیں, ہم نے دوائیاں پڑھنی ہیں, اور ہم نے سب سے بڑھ کر اس دنیا میں اگر ہم اپوزٹ ٹریٹمنٹ ہیں, ہم آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ ہیں, ہم دوسرا علاج ہیں, تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے مریضوں کو. کم از کم آپ آدھے مریض لے جائیں, آپ چوتھائی حصہ مریض لے لیں, تو تب آپ کا مقابلہ ہوگا, تب ریولیوشن آئے گا. اور یہ ریولیوشن آئے گا, اور یہ ریولیوشن آئے گا, اور یہ ریولیوشن ضرور آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا, میری دوستی ان کے ساتھ اسی وجہ سے. میں بڑا اکھڑ بھی آدمی ہوں, میں بڑا سخت گیر بھی آدمی ہوں. مجھے جو بچہ بندہ اچھا نہ لگے میں ہاتھ بھی نہیں ملاتا رسمن جی. میرے پاس یا ادھر ہے تو یا ادھر ہے, میرے پاس درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا. میری اس کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی اسی وجہ سے کہ ہم نے چھپانا نہیں, ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا, ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, اور ہم نے دنیا میں ریگولیشن لانا ہے.
हमने लोगों को समझाना है कि बुनियादी तौर पे, और मैं आपको बताऊं ना, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग तब आपकी तरफ और आएंगे कि हर बंदा अली डॉक्टर अली की जबान बोलेगा, हर बंदा MS को समझेगा, हर बंदा जीपी सिंड्रोम को समझेगा, हर बंदा माइस्थीनिया ग्रेविस को समझेगा, हर बंदा स्ट्रोक को समझेगा, हर बंदा क्लॉट को समझेगा, हर बंदा हेमरेज को समझेगा। रेवोल्यूशन सिर्फ दवाई पढ़ के मेरी बातों ये जादू टूटने वाला काम नहीं चलेगा। हम साइंस कहलाते हैं, साइंस प्रूव मांगती, साइंस सबूत मांगती है, साइंस सबूत मांगती है, साइंस प्रूव मांगती है। हमने H2O को साबित करना है कि H2O पानी कैसे बनता है। और अगर आज ये जो हाल बैठा हो ना, ये आज बैठा हुआ है यार, आप बुनियादी चीजें तो पढ़ सकते हैं ना। हाँ, एक डिजीज को शुरू करो, आप जर्नस को शुरू करो, आप किडनी स्टोन को शुरू करो, आप टाइफाइड फीवर को शुरू करो। मैंने लोगों ने मुझे फीवर को उतारना बड़ा मुश्किल, हमने फीवर का मैकेनिज्म बताया, फीवर पैदा कैसे होता है, कौन कौन से फीवर है, कौन कौन सी दवाइयां है भाई। क्या तो हमने कोई कसर छोड़ी हो तो आप कहें खड़े उसके हाथ खड़ा करेंगे, यार ये तुम्हारी गलती है, ये तारक की गलती है, ये उस्मान की गलती है, उठे ना, गिरबान पकड़े ना मारे। हमने खुदा के आगे जान देनी है, हमने आपको भी साथ देना भाई। अगर कोई लफ्ज सीने में रख के इस दुनिया से जाओ तो खुदा आखिरत नसीब ही ना करे। हमने जो सीखा, जो समझा, वो आपको डिलीवर करें। लेकिन रेवोल्यूशन एक बंदे से नहीं आता भाई, काफिले बनते हैं। दुनिया के रेवोल्यूशन मैंने पढ़े हैं, मैंने चाइना का रेवोल्यूशन पढ़ा है, मैंने फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ा है, मैंने रशिया का रेवोल्यूशन पढ़ा है, मैंने इस्लामिक रेवोल्यूशन पढ़ा है। हमने दुनिया के रेवोल्यूशन पढ़े। रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आते, स्किल होगा, बंदे ट्रेन होंगे, रिजल्ट देंगे, फिर रेवोल्यूशन और आएगा। हम जिस राह पे निकले, ये नबियों का, वलियों का, साइंटिस्ट का, सूफियों का रास्ता है। और जो सच्चे साइंटिस्ट दुनिया में गुजरे हैं, उन्हीं की वजह से आज बत्तियां जल रही हैं, उन्हीं की वजह से आज लोग जिंदा हैं भाई। इसलिए हमने मरना है, हमने मरना है। और हम इस दुनिया से ना तो कोई सीने में राग लेके मरना चाहते हैं और ना अपने ऊपर कर्ज रख के मरना चाहते हैं। इसलिए कहीं भी एक टॉपिक में शुरू करता तो मैं बेशुमार उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि कुछ चेंज आए, कुछ चेंज आए, कुछ जुर्म पैदा हो। और मैं इस वाक्य के साथ खत्म करना चाहूंगा। तो सवाल आपके पास होंगे तो मैं जरूर उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं उस्मान है, डॉक्टर तारक, सारे आपके लिए अवेलेबल हैं, जिस बंदे से भी आप कोई सवाल करना चाहते। मैं एक वाक्य, गजाली का नाम आपने सुना, इमाम गजाली, इमाम गजाली का नाम सुना है? ये गजाला का रहने वाला। कहते हैं गजाली एक गरीब बाप का बेटा था, उसके पास ये सलाहियत नहीं थी कि वो किसी टाट पे बैठने वाले के स्कूल में जा सके। तो उस गांव के रईस के घर एक बंदा ट्यूशन पढ़ाना आता था, उस्ताद आता था। उस बच्चे को वो देख के कि उसके अंदर हसरत थी कि काश मैं भी पढ़ता, काश मैं भी पढ़ता। तो जब घोड़े पे वो आता था, उस जमाने में 800 साल पुरानी बात है, तो जब घोड़े पे स्कूल में पढ़ा के, उसको घर में पढ़ा के गांव से निकलता था, तो बच्चे ने उसको रोका। उन्हें कहा, उस्ताद जी मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ? उसने कहा बच्चे करो। उसने एक सवाल किया, फिर उसने जवाब दिया, उसने दूसरा किया, हत्ता कि वो जिस गांव से वो बंदा आता था पढ़ाने, वो उस घोड़े के साथ साथ चलता रहा कि आज तक उस गांव तक जाता। फिर अगले दिन वो जब आता तो फिर वो उससे सवाल करता। तो गजाली ने यूं पढ़ा, इमाम गजाली ने यूं पढ़ा है। आपको पता है राजी
राजी पढ़ाया जाता है ना, आज भी वेस्ट की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और राजी 38 साल की उम्र तक अनपढ़ था, 38 ईयर्स की उम्र तक अनपढ़ था, और कुछ दोस्तों से मिलकर पारा गर्म करने लगा, कुछ सोना बनाने का कोर्स सीखने लगा, तो उसकी आंखें खराब हो गई। तो किसी हकीम के पास चला गया, तो उसने कहा जी मेरी आंखें खराब हो गई, इसका कोई इलाज कर दे। उन्होंने कहा 500 रुपये लगेंगे तब आपका इलाज होगा। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो 500 का, लेके आओ 500 रुपया। वो 500 लेके आया, उसने उसका इलाज किया, उसकी आंखें ठीक हुई। उसने कहा कि देखिए सोना बनाने का गुण मेरे पास है, इल्म जो है कि सोना बना सकता है ना। तो राजी ने 38 साल की उम्र में पढ़ना, आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ राजी से भी कम उम्रें हैं। तो आज से अगर पढ़ सकते हैं तो राजी आज भी वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, 38 साल की उम्र से अनपढ़। तो इसके साथ मैं चाहूंगा कि तूफान नूर आने से है जश्न फायदा, 2 अश्क की बहुत है, घर कुछ असर करें। ठीक है जी, कोई सवाल हो, कोई उम्र जाति से वाबस्ता सवाल हो तो मैं आकर, मेरी टीम आकर, मेरे दोस्त आकर, हम आपके साथ हैं। और जिंदगी में कुछ भी आपको हमसे पूछना हो, जो खुदा ने हमें दिया है वो आपको जरूर। ठीक है जी, आपकी इतनी बिजी लाइफ थी, सच्ची बात है, इतनी बिजी लाइफ, इतने फूल आपने फेंके, इतना आपने मुझे खुश करने की कोशिश की, लेकिन मैं कमीना आदमी में सच्ची बात है खुश नहीं होता। खुश मैं तब हूंगा, मैं खुश तब हूंगा कि आज सारे तकरीबन 100 पेशेंट क्रॉस करेंगे तब मैं खुश मैं तब हूंगा। ये फूल जो है ना, ये फूल दवाइयों की तरफ आप पड़े, और ये जब फूल आपने फेंके ना, ये मरीज जो बीमारियां उनको आप पड़े, तो फिर मैं ये समझूंगा ये एक बीमारी मेरे पे आ रही है कि मेरे पास फूल है, तो मैं तो तब खुश होगा। भाई सच्ची बात, मेरी खुशी तो तब है, मैं इसलिए नहीं निकला कि मेरे पे आप फूल थे, खुदा गवाह इसलिए, खुदा गवाह इसलिए नहीं निकला, हम सिस्टम को चेंज करने के लिए। और ये ज़बानी कलामी बात नहीं है, मैंने 20 साल दिल्ली की पहले एक छुट्टी नहीं की, एक छुट्टी नहीं की, और हमने जदोजहद की, हमने कोशिश की, और फिर भी तशने की, फिर भी प्यास नहीं हुई थी। क्योंकि सुकरात का ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। एक लाख उससे किसी पूछा कि तुम कितना जानते हो, उन्होंने कहा इतना कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं जानते। तो मेरी तो अभी भी तशनगी है, लेकिन मेरी ड्यूटी ये है, जितना मैंने देखा उतना मैं आपको दिखा के चलूं। ये तो खुदा का इल्म है, ये तो समंदर है, ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये तो बलियों पैगंबरों की बस की बात है। लेकिन मेरे बस में ये कि जो मैंने देखा है, और मैं रब को गवाह बना के कहता हूं कि जो मैंने देखा है वो मैं बता के जाऊंगा। इसलिए उससे मोहलत मांगता हूं कि मेरी जिंदगी की इतनी मोहलत है, मैं कुछ भी न छुपा दूं। तो नाराज ना होना, आपके फूल सर आंखों पे, लेकिन मेरे लिए फूल तो वही है, आपके मरीज मेरे लिए, आपकी कामयाबी मेरे लिए फूल है, आपकी सक्सेस मेरे लिए, मुझे वो चाहिए अगर आप दे सकते हैं। वगरना हम तो फकीर लोग हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार आवाज आती है कि नहीं, चैन आए, चैन आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप इतने दूर से आए, इतनी लगन से आए, और ये लगन खुदा करे हमारी कामयाब हो और हम बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। Any question from any side? What is the polio visit? देखिए ये चैन हमारा चैन ये है कि हमारे सिस्टम में जब औरत को पैदा किया गया
उसको अंदर 360 लगभग साइकिल डिजाइन कर दिए, इतने इसको मेंसेस हो, और ये ओवरीज का फंक्शन है। अब ये चलता कहाँ से? ये चलता है डीएनए से, ये चलता है एपिथैलेमस से, ये चलता है पिट्यूटरी, थायराइड एंड ओवरीज। ये पूरा एक चेन है। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये है कि आपके जो एग्स में बनना होता है वो एग्स बनते हैं और वो मैच्योर नहीं होते। उनके अंदर आप ये समझें कि वो छोटे छोटे एग्स होते हैं और वो एग्स मैच्योर नहीं होते और वो फर्टिलाइज औरत नहीं होती। उसमें वो बांझ भी हो सकती है, उसके बच्चे भी नहीं पैदा हो सकते, उसका मेंस्ट्रुएशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो सिस्टम को डीएनए को एक्टिव, फर्स्ट करें आपको नहीं पता कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले तो डीएनए को एक्टिवेट करेंगे। डीएनए को कहाँ से एक्टिवेट करेंगे? आप एक्स्ट्रा डीएनए को एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता है। सोल डीएनए की सलाहियत रखता है। उसके बाद आपके पास एंटी मैग्नेटिक मेडिसिन है, जैसे कार्सिनोसन है, ट्यूबर है, कोई हिस्ट्री के मुताबिक बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा जो अच्छा काम करने वाली दवाई है पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये बेस सेट करती है। आपने मैकेनिज्म समझना है, बेस आपने सेट कर दिया तो सीपिया बहुत बड़ी है। सीपिया के बारे में कैंट ने एक जुमला लिखा हुआ है कि सीपिया मर्दनुमा औरत है, मर्दनुमा औरत है, मर्द बच्चे नहीं जम सकता। तो मर्दनुमा औरत, जो औरत मर्द की शक्ल की है, उसका पेल्विक नैरो है, वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, तो सीपिया बहुत बड़ी है। फिर हमारे पास एक दवाई है जिसके बारे में ये लिखा गया है सिट्रीनियम, ये इंसान को वक्त से पहले मार देती है। ये बच्चे पैदा होने से पहले मार देती है, बच्चा पैदा होने के बाद मार, और ये बच्चे पैदा भी नहीं होने देती, ये बच्चे पैदा भी नहीं होने देती। तो आप एक्सरे को अगर समझ जाते हैं, आप सिट्रीनियम को समझे। मैं छोटा सा तो मेरी माँ जो है वो सोने का पानी जो है ना वो दरख्तों पे छेड़ती थी, तो मैंने उनसे पूछा माँ जी क्यों ऐसे करते हैं? तो कहती है इस पानी से ना फल लगते हैं, इस पानी से फूल लगते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने इसको बहुत समझा। और बहुत बड़ी दवाई है ये जो आपने सवाल किया, मेहर आपकी तशरीह की बेहतर होगी। तो बड़ा लेकिन लंबा टॉपिक है, इसकी पूरी बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप इन ग्राउंड पे काम करेंगे तो आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ठीक करने की सलाहियत है। ठीक है जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। देखें मेरा एक लेक्चर आप इसको सुने, ये जोड़ों का मर्ज। अब जोड़ों में कितने मर्ज हैं? जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये डिजनरेशन प्रोसेस है आपकी बॉडी में, कि आपकी हड्डी बढ़ गई, आपकी हड्डी गिर गई, आपका जो जोड़ का सेल्यूलर फ्लूइड है वो ड्राई हो गया। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ये अमल है, इसका डिजनरेशन। एक आपके अंदर है, जोड़ों के अंदर होते हैं गाउट। अब गाउट क्या है? गाउट पैदा होता है यूरिक एसिड की, वो भी जोड़ों का दर्द है। एक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जोड़ों का दर्द है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जो आपका सवाल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है, और ये जो आपकी सिनोवियल मेम्ब्रेन है, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है, जब आपका सिस्टम किसी वजह से एक्टिवेट होता है फॉरेन बॉडी के खिलाफ, तो वो जो ऑटोइम्यून आपका जो एंटीबॉडीज है, जो मदाफती निजाम है, वो उस चीज को भी अटैक करेगा, फॉरेन बॉडी को भी, और जो आपकी सेल्यूलर मेम्ब्रेन है इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये बेसिकली सेल्यूलर मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर है, और इसमें वो पॉजिटिव फैक्टर आप देखेंगे कि इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट हुआ। तो वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किस वजह से हुआ? जो आपकी जेनेटिक का था उसको एड्रेस करेंगे, और यहाँ जो बहुत अच्छा दुनिया काम करती है वो आप उसको एक्टिवेशन को देखेंगे। फर्ज करेंगे किसी ने वैक्सीन लगाई, उसकी वजह से एक्टिवेट होगा, तो आप कार्सिनोसन दे दें,
आप मेटोरिनम दे दें, और यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाएं हैं वो है फॉर्मिकल है, वॉलिडम है, कॉल्सिकम है, दवाइयाँ यही हैं। जब कॉज है एड्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। भाई मेरे दिल का बढ़ने की बड़ी वजह, ये तो मेरे 7 लेक्चर हैं, दिल के बढ़ने में मेरे 7 लेक्चर हैं। जैसे कि जो बड़े आदमियों का दिल बढ़ता है उसकी वजह यह है कि आर्टरी नैरो हो जाती है, आपकी जो शरियानें हैं वो तंग हो जाती हैं, हार्ट प्रेशर लेता है। अब ये देखें ना, एक पंप करता है और आगे अगर उसका रास्ता नहीं मिला तो पंप जोर से करेगा, यूं करेगा तो कर करके ना वो थक जाता है, थक जाके ना उसका मसल फूलना शुरू हो जाता है, फूलना फैलना शुरू। बड़े बच्चों में कंटेटिवली बहुत सारी डिजीज है, मायोकार्डियोपैथी जो है बड़ा एक सब्जेक्ट है। बच्चों में जो हमारे बच्चे होते हैं PhD का, PhD का, PDA, TDA, लेकिन मैम अगर ये समझें कि जब आपका हार्ट में कहीं रुकावट मिलेगी तो वो सब जोर लगाएगा तो वो फैल जाएगा। इसकी बेशुमार दवाएं हैं, आप ऑरोमेट दे सकते हैं, आप एरिया दे सकते हैं, आप लाइको दे सकते हैं, आप एप्पल दे सकते हैं। तो किसी का कार्डियोवास्कुलर जी ठीक है जी। एज पर में आपके पास स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है डॉक्टर बुखार मुल्ला साहब, है तो सच्ची बात है। हाँ जी, ये आप देखें हनीमन का मैं आपको हनीमन ने आपको 4 पैसे वसूल बताए, सुने जी आपने 4 पैसे वसूल बताए, सिंगल, प्रूव, सिमिलर एंड पोटेंटाइज। वो कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर दवा का एक अमल है, उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन आप फ्रूट फॉर्म में लेते हैं और जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं पोटेंसी में तो दैट अंडरस्टैंड। तो वो कहता है कि क्यूरेटिव पावर जो है वो मिनिमम डोज है। आप जितनी पोटेंसी हाई करते जाएंगे वो मिनिमम डोज हो जाएगी, ऊपर लेते जाएंगे। अब ये रिवर्स है कि आप 2 + 2 = 4 mg एंड आप इसको 1, 2, 3, 4,000 टाइम डाइल्यूट कर 1 टाइम, इट इज अ मिनिमम। अब आपको समझ आई बड़ी लगेगी। देखिए जिसने शिफा का असूल बड़ा वाज़ेह कर दिया। आप जितनी ताकतवर बीमारी होगी उसको इतनी ताकतवर दवाई देंगे, तो अगर उसकी पोटेंसी तो बीमारी की फर्ज करेंगी 1000 तक, तो आप उसको 1010 दें, आप उसको 1000 दें। हनीमन का एक प्रोग्राम है 246 से लेकर 249 तक उसने डोजेस पे बहस की है। तो वो कहता है कि आप अगर हाई पोटेंसी देते हैं और सिमिलर नहीं दिया तो जब उसका फंक्शन शुरू हो जाता है तो आप हाथ रोके। फिर एक जगह वो कहता है कि उस वक्त तक रिपीट करते जाएं, चाहे घंटे बाद करें चाहे 2 घंटे बाद, जब तक वो सेहत के रास्ते पे कामयाब नहीं हो। फिर वो ये कहता है कि हर दवा अगली दवा से मुख्तलिफ होनी चाहिए। आप किसी को दवा देते हैं तो आप उसकी अगर पोटेंसी रेज नहीं कर सकते तो उसको कहते हो 10 से 12 झटके दें तो उसकी अगली पोटेंसी रेज। तो दिस इज एक्यूट में हम तो 1 mg से स्टार्ट लेते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, और क्रॉनिक में भी हम इसी तरह करते हैं 1 mg से स्टार्ट लेते हैं फिर ऊपर जाते हैं। लेकिन पोटेंसी की रेपुटेशन के बारे में वो एक बड़ा रिपोर्ट भी उसने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि मैं ये डॉक्टर की स्वास्थ्य पे छोड़ता हूँ कि वो मैंने उसको सारा पढ़ा दिया है, मैंने उसको सारा समझदार, वो समझा आप सारे समझदार हैं, तो उसने कहा कि मैंने उसको सारा समझा दिया है, अब उसकी मैं स्वास्थ्य पे छोड़ता हूँ कि वो कौन सी पोटेंसी और किस वक्त उसको। हाँ, मैं तो LM तक इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो LM की यूज करता हूँ, लेकिन भारत आप ये कंसेप्ट के ध्यान में रखें कि मिनिमम डोज जो है जिसको आप हाई पोटेंसी करें 1 m 10 m CM, दिस इज द मिनिमम डोज। और क्यू का प्रैक्टिस जो है दैट इज नॉट होमोपैथी। तो क्यू मदर टेंशन इज नॉट होमोपैथी, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। उसने बेसिक लॉ ड्रॉ कर दी है कि पोटेंटाइज
डेल्यूट, वो लाल सिंड्रोम। यार सब एक सवाल है, अभी एक दोस्त ने आवाज खोलने दवाई की यार, आवाज कम है। क्या कह रहे थे? लिवर एब्सेस का केस है, लिवर एब्सेस का केस। देखिए ये लिवर डिजीज है और इसमें एक्सेल क्या है, थोड़ा और थोड़ा क्या हो सकता है, ये इमरजेंसी भी हो सकती है। अब फोड़े के ऊपर रेफरी में दवाइयाँ क्या लिखी है, फोड़े पे मर्क्साल है, फोड़े पे हाइपरसल्फ है, फोड़े पे पैराजीनम है और फोड़े पे आपके सलेशिया है, ठीक है ना। ये फोड़े की दवाइयाँ, ठीक है, ये काम नहीं करेंगी मेरे भाई, मैं आपको बताऊँ वहाँ लिखा हो। हाँ नहीं, फोड़े पे कार्सिनोसन तो स्टेप है, लेकिन उसकी कॉजेटिव फैक्टर कोई हेपेटाइटिस नहीं हो सकता, उसको कोई और भी साइकोसिस नहीं हो सकता, तो मैंने कहा हेपेटाइटिस नहीं हो सकता। तो वो पॉजिटिव फैक्टर उसको एड्रेस करें तो फिर जो रेफरी की दवाइयाँ वो इस्तेमाल करें तो थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है जी। स्प्लीनोमेगाली तो वही इसी वजह से ना। What is the role of स्प्लीन का रोल यह है कि वो आपके जितने सेल बॉडी के डेथ होती है तो वहां स्टोर होते हैं, तो जब डेथ सेल की स्टोर बढ़ता जाएगा तो स्प्लीन बढ़ जाएगी। तो जब आप लिवर को एड्रेस करेंगे तो स्प्लीनोमेगाली कम हो जाएगी। तो वैसे स्प्लीनोमेगाली की अगर मुझसे दवाइयां पूछना चाहते हैं तो सियानोथिस है और चाइना जी और कल्केरिया आर्स, ठीक हो गया जी। और भी किसी को चाहिए जी, एनी क्वेश्चन? अभी एक दोस्त ने डॉक्टर प्रकाश गुप्ता साहब से एक क्वेश्चन किया था, कौन सा दोस्त था वो? अभी यार मैं एज ए स्पर्मिया, मैं जो बुढ़ा मेरा छोटा भाई है, मैं आपको समझा देता हूँ। एज ए स्पर्मिया जो है बेसिकली स्पर्म का ना बनना। अब स्पर्म का ना बनना बेसिकली दो वजूहात हो सकती हैं। बनता है लेकिन उसको एजुकेट नहीं होता। बाद में टेस्टिकल बियॉप्सी की जाती है तो उसके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वो उसका रास्ता बंद होता है। एक तो अगर आप ये असेस कर लेते हैं, बियॉप्सी के अंदर पता चल जाता है कि वो स्पर्म बन रहे हैं, तो फिर हम उसको खोलने का आपको तरीका बताते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तो मेरे भाई ये डीएनए का प्रॉब्लम है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर, जीन के अंदर वो म्यूटेशन हो गई है जिसने टेस्टिकल्स को डील करना है। तो ये फिर अगेन वही स्टैंड है, डीएनए, एपिथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टेस्टिकल। तो वहां कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वही साइकिल जो मैंने औरतों में बताया उसी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है जी। और फिर उसी से या कोई बाद लोगों को मंथ निकल आते हैं, बाद लोगों को टाइफाइड हो जाता है, बाद लोगों को टेस्टिकल इंजरी हो जाती है, तो उससे भी जो है एंडोस्पर्मिया पैदा हो सकता है। बड़ा मुश्किल सा काम है, इसको समझदारी से हल किया जाए जी, ठीक है जी। हमारे पास सैंपल की याद है, हजारों डॉक्टर हैं जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे मायानाज डॉक्टर हैं वो एक टीम बना रहे, उनकी कम्युनिटी को मैं कैसे करूँगा? हाँ मैं नहीं करूँगा ऐसे तो हमारे काबुल भी डॉक्टर हैं वो इकट्ठे हो गए, ऐसी इलाज जिसका सर जी हम इसीलिए जैसे पोलियो वैसा, तो हम 3-4 वो ठीक आते हैं, इसमें हमारा साथ मेरे भाई साहब पोलियो मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जब मैं होम्योपैथी करके निकला था तो ये सवाल मेरे जहन में उस वक्त चल रहा है, लिहाजा हमने लोगों की मिलते जुलते छोड़ दी, हमने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया और हम चल पड़े। तो जिसने देखें हम 4-5 लोग जहाँ इकट्ठे हो गए ना, ये वही लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, हम जस्तजू कर रहे हैं, हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो जो आप कहते हैं ना कि वो बड़े मायानाज है, वो मायानाज नहीं है, वो कमीने हैं। मैं इतना ही कह रहा हूँ, वो कम जर्फ है और इससे ज्यादा उनके लिए जो जर्फ वाले हैं वो हमारे साथ आगे रहते हैं, जो जर्फ वाले हैं वो हमारे साथ आएंगे। आप फिक्र न करें, हमारा ये सवाल पहले दिन से हमारे अंदर है कि वो जर्फ वाले आए। अगर वो जर्फ वाले आते
तो कायनात का रंग इस वक्त जो वजूद है वो डिफरेंट होगा। लिहाजा हम हाजिर हैं, हमारे दोस्त हाजिर हैं, आपके सवाल का जवाब दीजिए। जी और कुछ? प्रोलैप्सिस और यूट्रस देखेंगे, यूट्रस का फाल्टी कैफिन का होता है। हमारे पास यूट्रस के प्रोलैप्स है कि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कमजोर यूट्रस है। कमजोर यूट्रस किसका होगा? जो फर्टिलाइजेशन करने की सलाहियत नहीं रखती या बेशुमार बच्चे जन्म लिए तो यूट्रस वीक होगा। सिपिया बहुत बड़ी दवाई है, काली कार बहुत बड़ी दवाई है, पोडोफाइलम बहुत बड़ी दवाई है, ओरोमेट बहुत बड़ी दवाई है, और रीडियम टिक है, न्यूरिक्स है। लेकिन इसके साथ जो वक्त से पहले इंसान को उसके आर्गन को डिस्ट्रॉय करता है, अगर आप उसके साथ सिलिनियम ऑर्नामेंट का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोलैप्स बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए जी, स्टैंड आपके पास माशाल्लाह डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, आपकी दस्तरस में है, इनसे आप रास्ते में रखें। लेकिन स्टंट या हार्ट की कार्डियोलॉजी की हर वो बीमारी ठीक है। मेरे 7 लेक्चर हैं, इसके 7 लेक्चर हैं मेरे हार्ट के। आप जरा उनको सुने, आपको बेहतरीन जवाब मिलेगा। और मेरे 7 लेक्चर कार्डियोलॉजिस्ट मेरे साथ खड़ा है। हमने आपको बताया क्या क्या होता है, किस तरह ठीक होता है। मैं एक लिस्ट में आपको सब नहीं बता सकता, आप उसको पढ़ेंगे आपको वहां आ जाएंगे। आप मेरे लेक्चर निकालें कार्डियोलॉजी के, आपको सारी तफसील कोई नेट पे है नहीं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं मेरे नाम से। ठीक है जी। और किसी को समय के बाद आपके साथ बैठे हैं। लम्बा देखे जी, जैसे कि 2 बेसिस है, 2 बेसिस है समय की, याद रखिए। एक बेसिस है ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी बेसिस साइकोसिस। तो आप ट्यूबर लगाएं, मेडोरिनम लगाएं, और जो दवाई आपको समझ आती है दे वो काम करें। ठीक है जी। देखिए जी, किडनी डायलिसिस देखें, ये भी एक बड़ा, इस पे भी हमारा एक बहुत डिटेल मेरा लेक्चर मौजूद है रीनल फेलियर पे। और मेरे साथ एक स्पेशलिस्ट भी खड़ा है डॉक्टर सज्जाद खान, और हमने इस पे डिटेल किया है। आप उसको पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें आप उसमें समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायलिसिस या रीनल फेलियर को कैसे ठीक किया जी। ठीक है जी। आप उसको सुने, आपकी तशरीह, आपकी प्यास बुझ जाएगी। मैं एक किडनी में बोलूंगा ना, मैं 3 घंटे खा जाऊंगा। तो आप उस लेक्चर को खोलें, आप थोड़ी सी तकलीफ करें, जहमत करें, तो जरा रीनल फेलियर को पढ़ें, मेरे उस लेक्चर को खोल के पढ़ें, आपको सारा जवाब मिलेगा। राइट साइड देखें तो सही है क्या वो मैं आपसे बात करूँ, वो मैं आपसे बात करूँ। चले इनको मिलाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। फिर नहीं ले रहे। मैं आखिर में, मेरे आने का मकसद, इस बात का तकलीफ करने का मकसद, मेरे साथ पूरी एक हमारा पिंडी इस्लामाबाद की जो मेरे साथ टीम आई है ना, आप इनसे टाइम मिले तो आपको 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा। ये आपके लिए वहाँ से पूरी जगह पढ़ के आया। तो मेरे आने का मकसद, उस्मान का आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि आप पढ़ेंगे, आप रोज बीमारियों को पढ़ें, रोज डिजीजेज को पढ़ें, कोई आपको प्रॉब्लम होता है हम आपको। थैंक यू सो मच।